Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਸੋਤਰ ਪੱਠੂ ਤੋਂ ਡਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਟ ਬਦਲਿਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਰੂਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਫਿਰ WT ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਤੀਜਾ ਰੂਟ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਘੁਮਾਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਚੌਧਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ, 3 ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੰਮ ਖੜੀ ਫਸਲ ਵੱਢਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਏ ਜਾ ਕੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਹਾਂ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ 18/11 ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵੇਖੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਨਕਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਰੂਟ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਰੂਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈੱਡ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰੂਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੀ। WTD ਨੇ ਉਹੀ ਰੂਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਜੇ ਰੂਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਚਲੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ADC ਦੀ ਕਮੇਟੀ DC ਨੇ ਬਣਾਈ ਜੀ। ADC ਮੰਨ ਲਓ ADC ਕੋ ਇੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ WTD ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਰਕੇ ਤੇ ADC ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਸੀ ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਅਫਸਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਂਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ। ADC ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਰੂਟ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸ ਕਰਿਆ WTD ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਜੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਖੇਲ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪੌਣੇ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਖੇਲ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲ ਲਵਾਇਆ ਜੀ, ਰੂਟ ਬਦਲ ਕੇ ਖੇਲ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਸਾਰਾ ਨਾਸ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਹੋਟਲ, ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਕਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਟ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਰ ਬਣਾਤਾ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ, ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਟਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਹੋਏ ਇਸੇ ਦੀ ਕਰਕੇ। ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜੀ ਫਿਰ ਲਾਤਾ ਜੀ ਰੂਟ ਵੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜੇ ਕੰਮ ਇਲੀਗਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਾਊਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਸਸਪੈਂਡ ਤਾਂ ਉੱਥੇ WTD ਰਿਪੋਰਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਪ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। FIR ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਰ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਜੀ, ਨੋਟਿਸ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲਓ ਜੀ, ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਲ ਲਓ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਓ, ਕਦੇ DC ਦਾ ਆਰਡਰ। ਜਵਾਬ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਪਿਲ ਵਤਸਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਸਹਿਨ ਸਾਡੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਆਏ ਆ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਕੌਣ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸੋਗੇ? इनिशली एक रूट मेरा ख्याल तकरीबन 2014 में जिसका नोटिफिकेशन हुआ था, एक्सियन रुपेश खेड़ा जो सिरसा में HVPNL में तैनात थे, उन्होंने एक रूटीन में जैसे रूट बनाते हैं स्ट्रेट एंड शॉर्टेस्ट, वो रूट उन्होंने बना के भेजा, जिसको SC हिसार मिस्टर तायल ने सेंक्शन भी दे दी थी। उसके बाद रुपेश खेड़ा एक्सियन की जगह पर मिस्टर विनोद चौधरी एक्सियन, जो अब भी वहीं तैनात हैं, चार्जशीट और क्या बोलते हैं अपने सस्पेंड होने के बाद उन्होंने मैनिपुलेट करके अपने आप को बहाल करवाया और उसी सीट पर दोबारा आ गए हैं, उसी रूट को निकालने के लिए, जिसके कारण उनको महकमे की हायर अथॉरिटी HVPNL पंचकुला ने, जिसमें बहुत बड़े ऑफिसर बैठते हैं, उन्होंने उस रूट को बाद में वो किया था।
और जो एमडी साहब ने एक कमेटी बनाई थी, चीफ इंजीनियर हिसार, एक एससी शायद हिसार थे और एक एससी पंचकुला थे। टेक्निकली और स्केल वाइज दिस कमेटीज, मतलब जो एडीसी की कमेटी बाद में पॉलिटिकल वेंडेटा करके बनाई गई, या दूसरी पार्टी जिसने अपने आप को सेव करने के लिए हमें नाजायज़ तौर पे फंसाया है, गांव के 10-15 घरों को, सिर्फ 2 घरों को बचाने के लिए आधा गांव जो है ना ये बीच में लपेट लिया इन्होंने। वो रूट बिल्कुल क्लियर था। जब चीफ इंजीनियर की कमेटी ने यहाँ विजिट किया, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में 4 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट तो ये कि एक्सीएन ने जो गलत बयानी करके पेट्रोल जीटी रोड के साथ पेट्रोल पंप, होटल और कवर्ड एरिया दिखाया था, वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, चीफ इंजीनियर साहब की और एससी साहब की कमेटी में लिखा हुआ है, राइटिंग में है। सेकंड पॉइंट ये था कि जो रूट एक्सीएन ने सर्टिफाई किया था कि ये छोटा है, बेसिकली वो बड़ा है, जिसको वो छोटा दिखाना चाहते हैं। अब वो ये कहना चाहते हैं कि 6 रुपए का नोट 10 रुपए से बड़ा है। अगर आप मानने को तैयार हैं तो हम भी मान लेंगे। थर्ड पॉइंट, इसी के साथ साथ उन्होंने एक ये पॉइंट लिख के सारा कुछ रूट लीक करने की बात भी उन्होंने लिखी है। उनको ये भी अपने तौर पे पता चल गया था कि एक्शन विनोद चौधरी ने रूट लीक करके, कोई स्कूल वाले हैं यहाँ पे जो गांव की तरफ सड़क मुड़ती है, उस पे टेम्परेरी शेड और एक टेम्परेरी सी वॉल क्रिएट करवा दी ताकि मैं रूट को डाइवर्ट कर सकूं। और दूसरी तरफ वो होटल, पेट्रोल पंप और कवर्ड एरिया दिखाया, वो बिल्कुल मौजूद नहीं है। उसके बाद हमने तहसीलदार सिरसा से, जो कि रेवेन्यू में अपने आप में रेवेन्यू की एक अथॉरिटी है, क्योंकि रेवेन्यू का सारा मामला वो तहसीलदार और डीआरओ साहब देखते हैं, आरटीआई के तहत हमने एक नकल उनसे ही भी ली थी। इस जगह का जो है मुआयना करवाने के बाद उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि मौके पर कोई पेट्रोल पंप, होटल और कवर्ड एरिया नहीं है। मतलब बिल्कुल फेक का फेक, और हमारे साथ ज्यादती कर, अब गॉड नोज की उनको हमारे साथ क्या रंजिश है और उस पार्टी के साथ क्या लगाव है, ये आप अंदाजा हमारे से ज्यादा कर कौन से गांव का रखवा है ये पतली टावर का है जी। पतली टावर सिरसा। मतलब जो कागज है प्राइमा फेसाई ऑन द फेस ऑफ इट, सारा कुछ क्लियर है, उसके बावजूद हमारे से धक्का हो रहा है। भाई गवर्नमेंट को 1.5 करोड़ का लॉस हो रहा है तो भी गवर्नमेंट सोई हुई है। इसका मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा फालतू है जो पता नहीं क्यों करते हैं। इस एक्सीएन के कहने में हो रहा है सारा। एक्सीएन जिस रूट के लिए है जी, इसके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं आपके जी जी, सारे डॉक्यूमेंट है A to Z। आप ये देखिए, पहले नक्शे में रुपेश खेड़ा के साइन है एज एक्सीएन, ये देखिए आप। पहला मैप जो ये पास किया इन्होंने, मिस्टर रुपेश खेड़ा एक्सीएन HVPNL सिरसा, उन्होंने प्रपोज किया है। और एससी मिस्टर तायल हैं, उनका नाम मुझे पूरा ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने इसको पास किया है, अप्रूवल हो गई है। जब एक रूट एक बार अप्रूव हो जाता है तो उसको बेसिकली तो दे कैन नॉट चेंज इट। सिर्फ ये होता है कि कोई 10-20 फुट की कोई वेरिएशन आती है तो उस तक तो जायज़ है। इन्होंने उठा के उसको 1.5 गांव के बाहर से घुमाकर 1.5 किलोमीटर लंबा कर दिया जी, जिसमें गवर्नमेंट को तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास जो है वो लॉस पहुंचाया जी। और हम 10-15 गांव वालों को जो बाहर से निकाला है, 20 घरों को हमारे को वो करके रख दिया जी। हमारी 2 सालों से नींद आराम कर रखी है इन्होंने। ये सारा पॉलिटिकल मामला है, ये प्योरली पॉलिटिकल है जी। वरना एडीसी की कमेटी स्केल वाइज और टेक्निकली वो चीफ इंजीनियर के सामने तो आधी भी नहीं पड़ती। और उसके अलावा भी जब महकमे का खुद जो टेक्निकल एक्सपर्ट है वो है ना जी, वो ये कह रहे हैं कि ROW स्टैंड्स फॉर रूट ऑफ वे ऑफ द लाइन। जो रूट ऑफ वे ऑफ द लाइन है दैट वाज क्लियर व्हेन द कमेटी ऑफ चीफ इंजीनियर एंड 2 SCs विजिटेड द स्पॉट। और ये एडीसी से और एसडीओ से रिपोर्ट करवा के एसडीएम से ये लिखवाना चाहते हैं कि ये रूट ठीक नहीं है। मतलब एक एसडीएम और तहसीलदार की रिपोर्ट के ऊपर एक चीफ इंजीनियर और WTD की रिपोर्ट को बदलना चाहते हैं। ये इतना बड़ा धक्का और इतनी बड़ी ज्यादती हो रही है हमारे साथ। मैडम जी 26 तारीख को आनी थी जी, मान लो एडीसी की कमेटी जी, और ये लिख रहे हैं जी हम 25 को विजिट कर लिया जी। आना तो यहाँ 26 को था जी, मान लो विजिट करने के लिए, और ये 25 को बोल रहे हैं भी हमने विजिट कर दी, भी अपने वहीं बैठ के बना दी सारा कुछ ही, आए नहीं यहीं। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ। एक्शन का नाम की है जी? पंकज मेहता जी। पंकज मेहता। हाँ जी, हाँ जी। एक एक्सीएन पंकज मेहता हाँ है, जी, हाँ जिसकी जी। जमीन या उसके परिवार के सदस्यों की जमीन, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उसको जमीन को बचाने बचाने के के लिए लिए ये सारा किया हाँ है। जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। मतलब ये आपस में महकमे के होने के कारण
बस कुली तो कुछ पॉलिटिकल हाँ जी, हाँ जी। और सर जी इन्होंने तो खेल मैदानों को भी नहीं छोड़ा जी, वहाँ उसे खेल मैदान मतलब 10 गांवों का था जी, उसमें भी इन्होंने पोल लगवा दिया जी। खेल इस रूट में खेल मैदान में हाँ जी, हाँ जी, हाँ जो जी। पहले वाला रूट था जी उसमें खेल मैदान में नहीं आती थी जी, जब इधर से जब बड़े ऊपर से घुमाया तो जी खेल मैदान में आ रही है जी। बोलो तुम बोलो। सरपंच साहब है ये जो खेल मैदान है ना उसके लिए हम सारे गांव वाले मिलके गए थे भी कम से कम ये हमारा खेल मैदान है ना तो ये कल को कुछ बड़ा बन सकता है, तो इसके अंदर पोल ना लगाइए, इसकी बहुत अच्छी लोकेशन है, यहाँ बच्चों का बड़ा अच्छा खेलने मन लगता है, लेकिन इन्होंने वो उसको भी नहीं बख्शा, खेल मैदान भी सारा उसका सौदा सारा बिगाड़ के रख दिया। कल को उसके कोई ग्रांट आनी है जाए उसका और बड़ा बन सकता है, वो अब उसकी सारी संभावनाएं खत्म कर ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ 8-10 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਛੱਡਿਆ ਜੀ 8-10 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਇੱਕੋ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜੀ। सरकार की पॉलिसी है कि जनरेशन को, यंग जनरेशन को अच्छे लाइन पे लगाया जाए ताकि नशे और ऐसी बुरी आदतों से बच सके। बच्चे यहाँ खेलना चाहते हैं, सरकार उसको खेलना भी बंद करा रही है। और दूसरी बात यह है कि एज पर द एक्ट, ट्रांसमिशन लाइन एक्ट जो है उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि विलेज प्ले ग्राउंड को के अंदर से ये लाइन नहीं निकाली जा सकती। और एक्सीएन ने एक दो बार खुद कहा है वहाँ स्टेडियम है जो एक्सीएन विनोद चौधरी है, उसके बावजूद ये लाइन वहीं से निकाल रहे हैं। अब प्रशासन से क्या जिस रूट के ऊपर जिस एक्सीएन को सस्पेंड किया गया था उसको उसी जगह पर बहाल करके और उसी को ही पावर दे दी है कि ये रूट निकाल ले, जो आपने गलत पास करवाया ना इसी को निकाल लो आप। सस्पेंडेड जो था खुद बहाल होकर फिर वही उसी पोस्ट पे बिठाया गया है। सरकार को क्या नजर नहीं आता कि इसको किस लिए सस्पेंड किया गया था? देखो इस लाइन ते 4-4 केस चलते हैं जी। हाई कोर्ट में जब पुलिस एक दे चीज बंदे- मैं माफ करिए आपसे एक सवाल आपसे ही पूछ लेता हूँ कि जब हाई कोर्ट में रेट पेंडिंग है, क्या इनको इतनी बड़ी गारंटी दी हुई है किसी ने कि भी आप रूट निकाल दो, भी आपके हक में ही जाएगा केस? हमारे एक डॉक्यूमेंट में बोल रहे हैं, स्पीकिंग ऑर्डर में है, इन्हीं के डिपार्टमेंट के आदमी से सस्पेंड हुआ ये एक्शन और उसी को बहाल करके और वही रूट को निकालना चाह रहे हैं। सर ये पॉलिटिकल मामला भी आ गया और कुछ ऑफिसर्स ये बेसिकली क्या है जी, पावरफुल आदमी है, हम सीधे साधे किसान लोग हैं, वो मैनिपुलेट कर रहे हैं सरकार के दम पे कह लो या किसी और दम पे करते होंगे तो उनको ज्यादा पता है और आप भी समझते होंगे, हमारे मुंह से आप क्या कहें। बिल्कुल जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।